Hello students, hope everything is fine with you. So let's start our today's lesson. Today we are doing block 5 and lesson plan 3 descriptive essay. So why do you think the poet has written the poem The Statue? And what makes us write or talk about certain things or people? सो आपको क्यों लगता है कि पोइट ने जो पॉम लिखी है द स्टैचू वो क्यों लिखी है और क्या चीज़ें हमें सर्टेन थिंग्स और पीपल के बारे में बात करने पर फोर्स करती हैं. द स्पीकर राइट्स अबाउट द स्टैचू बिकॉज इट मेक्स हिम क्यूरियस बाय इट्स साइलेंस एंड कन्फ्यूज्ड a little afraid with its foreign words. We usually write about things or people that make an important impact on us or generate an emotion in some way. तो स्पीकर जो है इसके जो फॉरेन वर्ड्स लिखे हुए थे नीचे बेस पे उससे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, थोड़ा डरा हुआ है, अफ्रेड है वो. और हम यूजुअली उसी पर्सन या उसी चीज़ के बारे में लिखते हैं जो हमारे पर किसी तरह का कोई इम्पेक्ट डालता है या फिर कोई इमोशन क्रिएट करता है. So today we will be learning how to write an essay about a person who has had an effect on us in some way. So आज हम सीखेंगे किसी पर्सन के बारे में ऐसे कैसे लिख सकते हैं जिसने हमारी लाइफ पे कोई ना कोई इफ़ेक्ट डाला हो. So I'm going to read out the essay from your Exceed Content book, My Friend Kusum, at page number 36. You have to listen it carefully and follow me. Kusum is a very good friend of mine. We love playing, eating and studying together. She studies with me in grade 6 of Sri Sant High School. She lives with her mother, father and older sister. She loves playing football and reading poems. She hates watching television and prefers to exercise or read to pass the time. कुसुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है. हमें साथ खेलना, खाना, पढ़ना पसंद है. वो ग्रेड 6 में श्री संत स्कूल में मेरे साथ पढ़ती है. वो अपने मम्मी पापा सिस्टर के साथ रहती है. उसे फुटबॉल खेलना, पोम पढ़ना बहुत पसंद है. उसे टीवी देखना अच्छा नहीं लगता. वो एक्सरसाइज करना चाहती है और बुक्स रीड करना चाहती है टाइम पास करने के लिए. सो दिस वाज द फर्स्ट पैराग्राफ. इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कुसुम. Now let's move forward towards the second paragraph. Kusum is a simple looking girl. She is tall, thin and fair. Her short straight hair is usually tied up in a high ponytail. She wears square black glasses that often slip off her short stubby nose. Her otherwise pale bony cheeks turn red whenever she chases the football around on the playground. She has a strange habit of biting her thin pale lips whenever she is confused or surprised. कई बच्चों को आदत होती है जब वो कंफ्यूज होते हैं, सरप्राइज होते हैं, लिप्स को बाइट करते हैं. सो दिस इज़ द हैबिट ऑफ कुसुम also. Whenever she laughs, her green eyes grow wide and glow like emeralds. Although there is nothing extraordinary about her looks, her simplicity makes her charming and attractive. सो कुसुम जो है बहुत ही सिंपल सी दिखने वाली गर्ल है. टॉल है, थिन है, फेयर है. उसके हेयर जो है शॉर्ट है और स्ट्रेट हैं और हमेशा पॉनीटेल में टाई होते हैं. और ब्लैक कलर के स्क्वायर ग्लासेस पहनती है, स्पेक्टिकल्स पहनती है वो. जो उसकी जो नोज़ है वो शॉर्ट और स्टबी सी वहाँ पे स्लिप होते रहते हैं. और उसके जो पेल बॉनी से चिक्स हैं जब भी वो फुटबॉल के लिए दौड़ती है वो रेड हो जाते हैं. और वो नेल्स को बाइट करने की हैबिट है उसकी. और जब भी हंसती है उसकी ग्रीन आइज़ और ज़्यादा वाइड हो जाती हैं, शाइन करती हैं. कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है उसकी लुक्स के बारे में. उसकी सिंप्लिसिटी ही उसे अट्रैक्टिव बनाती है. नाउ third paragraph. Kusum is a mischievous but very encouraging and helpful person. She loves playing pranks on her friends. She has fooled me on many occasions. On one such occasion, she told me that we had a science test in 3 days. For 3 days, I studied day and night. On the supposed day of the test, when the teacher taught her usual lesson, I realized that Kusum had fooled me again. I don't mind her pranks because at the end of the day, she does not mean any harm. She always encourages me and helps me when I am struggling. When I wanted to participate in the school play, she knew I was not a very good actor, yet she helped me practice for the auditions. She would always say things like, "You are doing well, but I know you can do it better." Thanks to her support and help, I got a role in the play. Kusum is a very lovely person and I love being with her. सो थर्ड पैराग्राफ में आपने देखा कि यहाँ पे पर्सनालिटी ट्रेट बताई गई. कुसुम के बारे में बताया गया कि एनकरेजिंग है, हेल्पफुल है और उसे मजाक करना पसंद है. एक दिन उसने बोला कि ये साइंस का टेस्ट है और मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की 3 डेज़ तक. और जो है टीचर ने फिर यूजुअल लेसन पढ़ाया. और लेकिन मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि उसका जो मोटिव होता है वो किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं होता है.
हमेशा इनकरेज करती है मुझे, और हमें जब भी मैं स्ट्रगल कर रही होती हूँ, मैं स्कूल प्ले में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। उसे पता था मैं अच्छी एक्टर नहीं हूँ, फिर भी उसने मुझे प्रैक्टिस के लिए हेल्प की और मैं सिलेक्ट हो गई। और वो हमेशा ऐसी चीज़ें कहती है, तुम अच्छा कर रही हो, तुम और अच्छा कर सकती हो। सो उसकी सपोर्ट की वजह से जो है मुझे रोल मिला। कुसुम बहुत ही लवली पर्सन है और मुझे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। So the essay is about Kusum and it is written by one of her friends. Kusum studies in grade 6 and is a simple looking girl. She is helpful and encouraging. So ये essay कुसुम के किसी फ्रेंड ने लिखा है, कुसुम के बारे में है और वो 6 क्लास में पढ़ती है। बहुत ही हेल्पफुल है और एनकरेजिंग है। द फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोड्यूसेस कुसुम बाय टेलिंग अस हु शी इज़ एंड व्हाट शी लाइक्स डिसलाइक्स। सो फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दिया गया है कुसुम का कि कुसुम कौन है, कहाँ पढ़ती है, किसके साथ रहती है, उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। द सेकेंड पैराग्राफ बिगिंस विद अ टॉपिक सेंटेंस अबाउट हर फिजिकल अपीयरेंस फॉलोड बाय द स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब्स हर फिजिकल अपीयरेंस सच एज हर शॉर्ट एंड स्टबी नोज। सेकेंड पैराग्राफ में उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया कि वो कैसी दिखती है। इसे टॉपिक सेंटेंस यहाँ पे है कि शी इज़ अ सिंपल लुकिंग गर्ल। फिर ये एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं टॉल, थिन, फेयर, शॉर्ट, स्टबी, नोज। So the third paragraph tells us about the personality traits and supports each of them with evidence. This evidence comes in the form of experience that the writer has had with Kusum. थर्ड पैराग्राफ में पर्सनालिटी ट्रेट बताया गया है, जैसे कि हमें बताया कि वो हेल्पफुल है, एनकरेजिंग है। फिर वहाँ पे एविडेंस भी दिए गए हैं कि जैसे उसने ऑडिशन के लिए हेल्प की थी, उसे एनकरेज किया था स्कूल प्ले के लिए। So what details can we include in each paragraph if we want to write an essay to describe a person who has made an impact on us? What questions can we ask to find these details? So the first paragraph should introduce the person by answering questions such as what is his her name, age, like, dislike. Second paragraph should describe the person's physical appearance by answering questions such as what are his or physical features like, what descriptive adjectives can be used here. The third paragraph should describe his her personality traits by answering questions such as what are two of his her main personality traits, what evidence is there to show these traits. जैसे कि कुसुम वाले ऐसे में थर्ड पैराग्राफ में बताया कि वो इनकरेजिंग है, हेल्पफुल है, फिर एविडेंस नहीं है। तो इस तरह से आप और भी कोई इंटेलिजेंट कुछ भी पर्सनैलिटी ट्रेट यहाँ पे ले सकते हैं। सो द essay शुड एंड बाय टॉकिंग अबाउट हाउ द पर्सन मेक्स यू फील। और जो ऐसे का आप एंड करेंगे, आपको ये बताना है कि पर्सन आपको फील कैसा कराता है। सो वी नीड टू यूज़ अ वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब अ पर्सन विविडली। वी कैन ऑल्सो यूज़ similes and metaphors in our essays. For example, in our friend Kusum, the sentence she wears square black glasses that often slip of her short stubby nose helps to create a more vivid image in our minds than a sentence like she wears glasses and has a short nose. So किसी पर्सन के बारे में अगर हम माइंड में जो है विविडली इमेज क्रिएट करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक एडजेक्टिव हमें यहाँ यूज़ करने होंगे। जैसे यहाँ पे जो कुसुम के बारे में सेंटेंस गिवन है कि शी वेयर स्क्वायर ब्लैक ग्लासेस दैट ऑफन स्लिप ऑफ हर शॉर्ट स्टबी नोज, तो इससे हमारे माइंड में ज़्यादा वाइड इमेज क्रिएट हो रही है। अगर हम ये सेंटेंस लिखते शी वेयर्स ग्लासेस एंड हैज़ अ शॉर्ट नोज, तो ये सिंपल एडजेक्टिव्स हैं, इससे हम इतनी ज़्यादा इमेज क्रिएट माइंड में नहीं कर पाते हैं। So now let's have a workbook at 27 page number, descriptive essay. Think of a person to write an essay about. Fill in the following checklist to write your descriptive essay about the chosen person. So paragraph 1, who is your paragraph about? आपका paragraph किस बारे में? Like my paragraph is about my friend Radhika. How do you know him, her? She is my best friend. What does he like and dislike? उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है. What are his her features like? उसके eyes कैसी हैं, nose कैसा है, hair कैसे हैं उसके. So is there anything special about the physical appearance of the person? How does his nose, lips, eyes or cheeks appear when he smiles, laughs, cries or does some other actions? तो जब वो हंसती है या उसकी नोज़ कैसी दिखती है, लिप्स कैसे हैं, ये आप लिख सकते हैं, एडजेक्टिव्स लिख सकते हैं लाइक नोज़ कैसी है, स्टबी है, आइज़ कैसी हैं, वाइड है. What personality trait of the person do you like the most? And what is one thing in the person and the does that the shows they have this trait? मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि वो काइंड है, आपने एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ किया काइंड. सो आपको एविडेंस देना पड़ेगा वो काइंड क्यों है. लाइक उसने कभी आपकी हेल्प की हो जब आप बीमार हो, आपको मेडिसिन ला के दी हो, आपको होमवर्क बताया हो, हेल्प की हो.
सो वट इज़ अनदर पर्सनैलिटी ट्रेट दैट द पर्सन हैज़, वट डज़ ही शी डू टू शो दिस ट्रेट। अब आपको जैसे उसमें बताया था एनकरेजिंग और हेल्पफुल है, तो आपको यहाँ पे दूसरा एडजेक्टिव यहाँ पे बताना है पर्सनैलिटी ट्रेट, उसका एविडेंस देना है, कंक्लूड करना है पैराग्राफ को। हाउ डज़ दिस पर्सन मेक यू फील, ये पर्सन आपको कैसा फील कराता है। एंड वट सिमिलीज और मेटाफर्स वुड यू इंक्लूड इन योर एसे, लाइक शी इज़ एज टॉल एज कुतुब मीनार and she is as soft in nature as cotton,